समझता लुधियाना में 2-3 जगह प्लेसेस हैं जो सेफ जोन में है। लूटमारी है, छीना झपटी है, इवन कुछ वारदातें मेरे स्टाफ्स के साथ भी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं मीन्स खौफ थोड़ा सा लोकल पब्लिक में कम होता जा रहा है। ना बदमाश कह लो ना आप गैंगस्टर कह लो जी, ये बिल्कुल गली के जैसे लड़के इकट्ठे होके एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, वर्चस्व की लड़ाई टाइप। सब एकजुट हों, एक साथ हों, एसपी या जो गवर्नमेंट्स हायर अथॉरिटीज लेवल्स हैं उनके साथ एक मीटिंग हो, उसमें सारे नॉर्म्स और हम किस तरह से इसको और सिक्योरिटी को अपने एंड पे भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलके इसको टाइटनेस करें, ताकि आम जो पब्लिक उस फंक्शन को अटेंड कर रही है दे फील सिक्योर्ड। तो ऐसा कुछ किया जाए। बिल्कुल। इस जहाँ जहाँ हम लोगों को अब पहले हम लोगों ने जहाँ जहाँ वर्किंग किया था जी। अब ये जो केस हुआ है इसके बाद हम लोग और ज्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं और जो कॉर्नर्स रह गए थे उनको और टाइट कर रहे हैं जी। और 100% जो आने वाला गेस्ट है वो हमारे प्रीमाइसेस में सेफ रहे। और जितना जल्दी होगा हम लोग एक प्लान आउट करते हैं सारे एक होके, जितने भी पैलेसेस वाले हैं, बैंक्वेट हॉल्स वाले और एक हायर अथॉरिटीज से, क्योंकि अभी सीजन चालू हुआ है तो सीजन अभी बाकी है, तो और सीजन प्रॉपर निकले, हमारे गेस्ट सिक्योर्ड हो, फुल एंजॉय करके जाएं हमारी प्लेसेस पे। तो ऐसा कुछ करके। तो गैंगस्टर है या बदमाश है? ना बदमाश कह लो ना आप गैंगस्टर कह लो जी, ये बिल्कुल गली के जैसे लड़के इकट्ठे होके एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, वर्चस्व की लड़ाई टाइप। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਰੈਪੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਉਹ ਘਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਨਕੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜੀ ਨਿਆ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਬੀਜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪੈਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਥਿਆਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਲਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕਰਿਆ ਚਾਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਲੜ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 20-50-100 ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸ਼ੈਲਟਰ बात का असल में जो ਜਿਹੜੀ फायरिंग हुई है, एक मुंडा सीगा वरिंदर ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। उन ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਕੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤੂਤੂ ਮੈਮੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਤੂਤੂ ਮੈਮੇ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ, 2 ਗੈਸਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਕੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬਾਤ ਕੈਸਲ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਇਨਵਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਪਰਚਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜमेंट है ਉਹਦੇ अगेंस्ट भी ਤੇ जिन्होंने इनवाइट किया सीगा उन्होंने भी। ये पहले भी 1-2 बार झगड़े हैं जी सर, ठीक है। इनके जो ग्रुप है लड़कों का, इनकी आपस में पहले भी 1-2 बार झड़प हुई है और 3-4 ऐसे भी हैं जिन पे लड़ाई झगड़े के पहले लड़ाई झगड़े का रिकॉर्ड है केस। तो गैंगस्टर है या बदमाश है? ना बदमाश कह लो ना आप गैंगस्टर कह लो जी। ये बिल्कुल गली के जैसे लड़के इकट्ठे होके एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, वर्चस्व की लड़ाई टाइप। एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने के लिए आज सभी के साथ रूबरू होने जा रही हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा आप सभी के साथ यही रहने वाला है कि क्या वेडिंग फंक्शंस हम सभी के लिए सेफ हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उम्मीद करूंगी कि एक बहुत ही जेन्युइन रिप्लाई आप मुझे देंगे कि क्या आज शादियों के फंक्शनों पे जाना हम सभी के लिए सेफ है। क्योंकि हाल में ही हमने देखा कि लुधियाना में एक मैरिज पैलेस में जो सारा गोली कांड हुआ जिसमें 2 इनोसेंट लोगों की जान चली गई, आज वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत छोटी छोटी एज के 2 इनोसेंट लोग आज हमारे बीच में नहीं है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये भी आप सभी जानते हैं। वहां पे 2 गुट पहुंचे, कहा जा रहा है कि उनकी आपसी रंजिश के कारण यह सब हुआ। क्या ये प्री प्लान था? क्या ये कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का मामला था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज सिर्फ लुधियाना नहीं ढूंढ रहा, पंजाब नहीं ढूंढ रहा, सारा भारत ढूंढ रहा है कि एक शादी के इवेंट पे इस तरीके का माहौल बनना, जहां पर लोगों में इतना डर पैदा हो गया, इतना सहम गए लोग कि कहीं ना कहीं आज लोग डर रहे हैं शादियों के फंक्शन अटेंड करने के लिए। अब इसके पीछे कारण क्या है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन हमारे रिस्पेक्टेड सीपी उनका यह कहना है कि एक गली मोहल्ले के बदमाश थे जो शादी पे आपसी कहासुनी में भिड़े और इस तरीके की गोलाबारी हुई। लेकिन इसके बारे में बात करने के लिए बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटी से हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं। और आज बहुत बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है वो खड़ा हो रहा है मैरिज पैलेसेस के ऊपर, जहां पे कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी चेक की नहीं थी जिसके कारण ये सब हुआ। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मिलवाना चाहेंगे लुधियाना में हमारे साथ जुड़ चुके संदीप सिंह सोडी जी, बाय द फॉल्स के जीएम। हाल ही में हमने देखा कि उनके बैंकेट हॉल की भी ओपनिंग हुई है। सर स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। नमस्कार मैम, बिल्कुल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। सर ये जो सारा मुद्दा आपने देखा, जो सिनेरियो लुधियाना सिटी का बना, सर आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आज सिर्फ लुधियाना नहीं डरा हुआ, इस सारे माहौल को देखकर पंजाब नहीं डरा हुआ, आज सारा भारत डर चुका है। क्योंकि ये जो किस्सा है, ये जो माहौल बना, ये आज पूरे भारतवर्ष के हर घर में ये खबर पहुंच चुकी है। मैम देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द होटेलियर्स ऑफ लुधियाना and banquet hall owners and all, हम लोग अपनी तरफ से
बीइंग एज ए जनरल मैनेजर ऑफ अ प्रॉपर्टी, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और जो नॉर्म्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं हम उसको पूरे फॉलो करते हैं। बट अगर जिस बंदे ने शरारत करनी है या जिस मूड से वो आया है, देखिए फिजिबिलिटी के मामले में अगर मैं देखूं तो हम एक टैग भी लगा देते हैं, साइनेज बोल दीजिए आप उसको, कि आर्म्स एंड एमुनिशंस आर नॉट अलाउड इन द कैंपस। जी। मैम, प्राइवेट बाउंसर्स या सिक्योरिटीज भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं अपने फंक्शंस वाले डे पे ऑन अ सिक्योरिटी रीजन। बट फिजिबिलिटी की बात करें तो मैडम ये फिजिबल नहीं है कि आप देखें कि अगर कोई फंक्शन चल रहा है, मान लीजिए एक बारात का प्रोसेशन है और उसकी एंट्री हो रही है, तो राउंड अबाउट 100 बंदों का एक मॉब वहां पे इकट्ठा है और मिलनी चल रही है, तो वहां पे ये फिजिबल नहीं है कि आप एक हर बंदे की सिक्योरिटी चेक करें या मेटल डिटेक्टर से उसको चेक करें। क्या होता है कि जब फंक्शन चल रहा है तो आप किसी का पर्स भी चेक नहीं कर सकते हैं, किसी लेडीज का। तो ये चीज कहीं ना कहीं मेरे एस्पेक्ट में मैम, जितनी सिक्योरिटी हम लोग रख सकते हैं और जितना वॉच हम लोग कर सकते हैं वो हम अपने लेवल पे करते हैं। तो देखिए, कोई आर्म्स अंदर पहुंचना, मतलब आप, अब मैं बाउंसर्स की बात करूं तो हम एंट्री पे बाउंसर्स रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि अगर बाउंसर कोई चेकिंग कर रहा है, मतलब इसमें कई कई प्लस और माइनसेस मैं आपको बता रहा हूँ जो हम लोग फेस करते हैं इस इंडस्ट्री में। अब होता क्या है कि इंडिविजुअल्स की आप किसी पार्टी में चेकिंग कैसे कर सकते हैं? मिलनी चल रही है, अब मिलनी को रोक के कि साहब मिलनी आप बाद में करना, पहले आप चेकिंग कराइए, दैट्स नॉट फिजिबल, यू नो। अब जिसको अंदर लेके आर्म्स जाना ही है वो अपनी अपनी वाइफ या उसके साथ कोई फीमेल है तो उसके पर्स में रख के ले जा सकता है। बिल्कुल सर, यहाँ एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पंजाब में हम रहते हैं, पंजाब को आज आप कहाँ देख रहे हैं? अगर हम गन कल्चर की बात करें तो बार बार पंजाब का नाम बदनाम किया जाता है कि पंजाब में गन कल्चर को प्रमोट किया जाता है, चाहे वो गानों के थ्रू किया जाए। बीइंग एज अ पर्सनल, आप यहाँ के रेजिडेंट है, आपको क्या लगता है पंजाब में गन कल्चर आज किस स्केल पे पहुंच चुका है? मैम, पहले हम लोग बिहार और यूपी को टारगेट किया करते थे और देखा भी करते थे, टारगेट तो क्या, उसको देखा भी करते थे और सुना भी करते थे कि आज सबसे ज्यादा क्राइम लेवल या गन जो कल्चर है वो बिहार और यूपी में है। बट कहीं ना कहीं आज पिछले 1 डेढ़ 2 साल से वो जो कल्चर था वो मैं सोच रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ अपने एक्सपेक्ट में कि कहीं ना कहीं वो पंजाब में अब सबसे ज्यादा नंबर 1 पे। बिल्कुल। लड़ाई हो, मारधाड़ हो, छोटी सी कहासुनी हो गई, हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब गन एक आम बात है कि बिल्कुल सर, आज हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी के ऊपर। मैरिज पैलेसेस सर, हमेशा ना हम मॉल्स में देखा करते थे या एयरपोर्ट पे देखा करते थे कि किस तरीके से सिक्योरिटी की तरफ खास ध्यान दिया जाता है। वहां पे सिर्फ एक बार नहीं 2 से 3 बार हमारी चेकिंग होती है। मॉल्स में भी जाते हैं तो पहले हमें मेटल डिटेक्टर से होके जाना पड़ता है, उसके बाद मशीन में हमारे पर्स चेक होते हैं। क्या आज वो माहौल बन चुका है कि शादियों पे भी इस तरीके के मेटल डिटेक्टर्स? अगर अपन वो कल्चर आप अडॉप्ट करवाना चाहें कि थ्रू गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज के थ्रू, तो वो मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि वो चीज फिजिबल नहीं है मैडम। ये इवेंट्स हैं, इवेंट्स में आप देखिए कि एक मैरिज फंक्शन है, मतलब आप मेरे घर की शादी है और उसमें बारात आ रही है या अंदर फंक्शन चल रहा है, तो हर एक गेस्ट को रोकना और उसको चेक करना, यू गॉट माय पॉइंट, तो वो फिजिबल नहीं है कहीं भी, मतलब मेरे एस्पेक्ट से अगर आप देखें। और या फिर, और सबसे बढ़िया, मैं एक जिसका पुलिस का खौफ है लोगों में, आप देखेंगे कि पुलिस की वर्दी कहीं नजर आ जाती है, ड्रेस नजर आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली एक पब्लिक में खौफ आ जाता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शंस है कि हम लोग एक तो नॉर्म्स पूरे करें, बीइंग एज ए बैंक्वेट हॉल ओनर्स या जीएम्स होटल्स के, वो एक नॉर्म्स जो हमारे हैं वो पूरे करें। प्लस एक उस एरिया में, आज मान लीजिए जैसे पखोवाल रोड है या XYZ कोई सा भी एरिया है, वहाँ हम लोग इंटीमेशन दे कि आज हमारे पास ये पार्टीज हैं, और असिस्टेंस जो हमें मिले वो इमीडिएट, एक तो असिस्टेंस मिले थ्रू थाने और जो अपने नियर बाई चौकी है या कोई, और दूसरा एक कंटिन्यू 1 या 2 या 3 बार उस इवेंट के आसपास पेट्रोलिंग। बिल्कुल सर, आपने अभी बात की पॉसिबिलिटी नहीं है सर,
पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? मॉल्स में भी है पॉसिबिलिटी, एयरपोर्ट्स में पॉसिबिलिटी नहीं होना, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैम देखिए, पॉसिबिलिटी हो आप सकती है। जो बात कर रहे हैं वो मॉल की कर रहे हैं। मॉल में पब्लिक जा रही है परचेज करने या उस मॉल को घूमने, यहाँ चल रहा है एक इवेंट देखिए कि अच्छा, मैं आपको चलो एक 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 जनरल मतलब एक एग्जांपल के बता रहा हूँ। जयमाला का टाइम हो रहा है, ठीक है, इधर मिलनी चल रही है, दूल्हा जो है वो अपनी घोड़ी से उतर रहा है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए इसमें हर चीज में 500 बंदा आया। अब क्या आप अपने एक्सपर्ट से बताइए मेरे को कि क्या फिजिबिलिटी है उस 500 बंदों को वन बाय वन चेक करने की? उधर अंदर हर चीज का टाइमिंग अलॉटेड है जी, बिल्कुल। अब मैं अगर 500 बंदों की बात करूं तो मेरे ख्याल 2 से 3 घंटे या 4 घंटे का टाइम उन 500 बंदों को चेक करके उसमें से थ्रू करना। सर लेकिन वो जो मेटल डिटेक्टर की बात हो रही है वो तो एक एंट्रेंस में ही आपको एक इंस्टॉल कर दिया जाएगा। जो भी पर्सन अंदर एंटर करता है मेटल डिटेक्टर उसको इजीली टेस्ट करके पर्सन इजीली अंदर मैडम जा सकता है। मेटल डिटेक्टर हमने लगा दिया, ठीक है, न्यूसेंस वाला कोई बंदा वहां आ गया, फिर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, न्यूसेंस करने वाला बंदा वहां पे आ गया, मेटल डिटेक्टर में उसका कुछ ना कुछ डिटेक्ट हो गया। एट प्रेजेंट वहां पे एक ऑटोनोमस बॉडी, प्राइवेट बॉडी ही है, कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं खड़ी है उसको चेक करने के लिए, वहां पे प्राइवेट बॉडी है। जब वो प्राइवेट बॉडी उससे टच होती है कि यार आपके पास ये फलाना आर्म्स निकला है या एम्युनिशन निकला है, वहां पे कन्वर्सेशन इतनी हाइकअप हो जाती है कि वहीं पे मैसअप हो जाता है। राइट। उस प्राइवेट चेकिंग वाले को भी अथॉरिटी नहीं है, वो एक हायर किया हुआ बंदा है थ्रू एजेंसी, बट उसके पास पूरी पावर या अथॉरिटीज नहीं है कि आपने आर्म्स पकड़ा तो आपको ये एक्शन लेना, ये एक्शन लेना। ऑन द स्पॉट देखिए कि आप सिचुएशन क्या क्रिएट होगी, इवेंट देन ये वाला, तो यू सी द सिचुएशन, यू जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। सर इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हाल में अभी आपने देखा है 2 इनोसेंट लोग जिनकी कोई गलती नहीं थी, वेडिंग फंक्शन वो अटेंड कर रहे हैं, घर से उम्मीद लेकर गए थे आंखों में कि शादी अटेंड करके घर आएंगे, अपनी फैमिली के पास आएंगे, अपने बच्चों के पास आएंगे, लेकिन कैसे वापस आए? पूरी फैमिलीज बिखर गई। बड़ी दुखद घटना है। देखिए कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला ना, इसमें नॉर्म सेट करने पड़ेंगे। सारे होटेलियर्स आए, सारे बैंक्वेट हॉल्स वाले आए, वी ऑल टुगेदर, एक एसपी या डीएसपी साहब से हमारी मीटिंग हो, वहां पे कुछ नॉर्म सेट किए जाएं, जहां पे हमें फुल सपोर्ट बैकअप के लिए हमें प्रशासन का सपोर्ट मिले। और मतलब सपोर्ट इन द सेंस, मेरा कहना है कि कोई ऐसा हमें कुछ एक्सपेक्ट नजर आता है उस पार्टी में या उसमें, तो हम इमीडिएट उनको कांटेक्ट करें और उनकी तरफ से इमीडिएट एक्शन। बिल्कुल। सर आपको लगता है पैलेस के बाहर सिर्फ एक छोटा सा पैम्फलेट लगाना क्या सफिशिएंट है, जहाँ पे लिखा होएगा कि आप कोई भी ऐसा वेपन अलाउड नहीं है जो आप अंदर लेके आ सके? लेकिन सिर्फ एक पैम्फलेट के बाद आपको लगता है कि आम पब्लिक पे इसका असर हो रहा है? या जिस तरीके से गैंगस्टर कल्चर है, गैंगस्टर्स अंदर जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं वेडिंग में, क्या उनके ऊपर इस चीज का असर होगा सिर्फ एक पैम्फलेट पढ़ने के बाद? ये भी आपके लिए एक नॉर्म है जिसको आप सेट कर रहे हैं। आप सारे बैंकेट हॉल के जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी आप ऑनर्स हैं, क्या आपको लगता है सिर्फ एक पैम्फलेट लगाना सफिशिएंट है इस तरीके के क्राइम को रोकने के लिए? मैम देखिए, अगर एक जनरल पब्लिक के एस्पेक्ट से मैं सोचूं, किसी के चेहरे पे या किसी को जज करने से मैं अपना एक एक्सपेक्ट रख रहा हूं कि गैंगस्टर का तमगा मैं किसी को नहीं दे सकता, बिकॉज ऑल आर माई गेस्ट। यस राइट। जो वो उस फंक्शन को या उस इवेंट को जो अटेंड कर रहे हैं, दे ऑल आर माई गेस्ट, तो मैं वो एस्पेक्ट से किसी को नहीं दे सकता। ये तो एक सिक्योरिटी लेवल है जो हमें सेट करना पड़ेगा। मैं बार बार आपको उसी चीज पे ध्यान दे रहा हूँ। ये तो ठीक है, एक घटना हुई है, अपने सामने आई है। आज इवेंट्स, बारात, मैरिज पोजेशंस, सेरेमनीज सालों से चल रही हैं। कुछ चीजें हैं जो निकल के बाहर आई हैं और उसका सॉल्यूशन, हर चीज का सॉल्यूशन भी है, तो बजाय अपन इसके उसका सॉल्यूशन ढूंढे। जी, क्या लगता है एक जो पुलिस की यूनिफॉर्म होती है वही काफी होती है थोड़ा सा डर पैदा करने के लिए? आपने मेरी वाली बात पहले रिपीट कर दी
मैंने कहा ना आपको, जहाँ पे पुलिस की ड्रेस नजर आ जाती है या पुलिस वाले नजर आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली 30% तो एक नॉर्मल आदमी में जी। भी एक खौफ आ जाता है, डर आ जाता है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी रिपीट किया कि एक कंटिन्यू सर्वेलेंस हो। जैसे मैं आज मेरे पास इवेंट है, मैंने उसकी इंफॉर्मेशन अपने कंसर्न थाने में दी या चौकी में दे दी। एक या दो बार वहां से हमें असिस्टेंस मिले कि वो आए एक राउंड। देखिए, जब गाड़ी पुलिस की पेट्रोलिंग वाली गाड़ी जब निकलती है, आपने भी देखा होगा, तो उस पे जब लाइट्स जलती हैं जी। तो बहुत दूर दूर तक पब्लिक अलर्ट मोड पे आ जाती है। बिल्कुल सर। तो वही सब कुछ मैंने वापस बोल रहा हूँ कि ऐसी एक पेट्रोलिंग भी हो, सिक्योरिटी लेवल टाइट हो, मेटल डिटेक्टर्स हो, और प्राइवेट बॉडीज जो हम लोग हायर करते हैं उनको भी थोड़ी अथॉरिटीज दी जाए गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से। बिल्कुल सर। आपको लगता है कि अगर आपकी एक मेजोरिटी, एक यूनिटी बन जाती है, जितने भी आप पैलेस के ऑनर्स हैं या पैलेस, आप एज ए जीएम आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज आपके सामने खड़ी है कि आने वाले टाइम पे जो भी बुकिंग्स आपके पास आएंगी, आई थिंक सबसे पहला सवाल यही रहेगा उनका कि सिक्योरिटी के लिए आप हमें क्या दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि एक मेजोरिटी बना के इसके ऊपर एक हार्श डिसीजन गवर्नमेंट के साथ मिलके आपको लेना चाहिए? यस, अब एकजुट हों, एक साथ हों, एसपी या जो गवर्नमेंट्स हायर अथॉरिटीज लेवल्स हैं उनके साथ एक मीटिंग हो, उसमें सारे नॉर्म्स और हम किस तरह से इसको और सिक्योरिटी को अपने एंड पे भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलके इसको टाइटनेस करें, ताकि आम जो पब्लिक उस फंक्शन को अटेंड कर रही है दे फील सिक्योर्ड। तो ऐसा कुछ किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, पंजाब में आप रहते हैं, आप अगर अपनी ड्यूटी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके बाहर निकलते हैं, आप अपने आप को कितना प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं आज? मैम, आज के तारीख में देखा जाए तो नाइट आवर्स में मैं नहीं समझता लुधियाना में 2-3 जगह प्लेसेस हैं जो सेफ जोन में है। लूट मारी है, छीना झपटी है, इवन कुछ वारदातें मेरे स्टाफ्स के साथ भी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं मीन्स खौफ थोड़ा सा लोकल पब्लिक में कम होता जा रहा है पुलिस का। तो ये सब एजेंडे सेट किए जाएं, मीटिंग्स हों, और रूल्स रेगुलेशंस और थोड़े से स्ट्रिक्टनेस और थोड़ी सी ज़्यादा की जाए। सिर्फ किस तरीके से स्ट्रिक्टनेस पे आप बिलीव करते हैं? क्योंकि आज जो, अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो आज हर एक शख्स की आंखों में ना इतना डर बैठ चुका है, किसी शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए 10 बार उनके माइंड में बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। तो किस तरीके की सिक्योरिटी होनी चाहिए? मैम, सिक्योरिटी तो देखिए, सिक्योरिटी एक्सपेक्ट से अगर मैं बोलूं, हम जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं वो तो हम करेंगे ही, बट हमें कहीं ना कहीं लोकल अथॉरिटीज़ को अपने साथ, वो हमारे साथ हों और उसका फुल कॉपरेशन हमारे साथ हो। क्योंकि एट द एंड हर जो पुलिस प्रशासन है उन्हीं का खौफ है, हम लोगों का भी खौफ है। हम लोग सिक्योरिटीज़ बहुत टाइट रखते हैं, एंट्रीज के टाइम भी, अंदर फंक्शन चल रहा है तो भी वी कीप बाउंसर्स, देन सिक्योरिटी वाले भी हम हायर करते हैं अपनी प्राइवेट पार्टीज में। बट कहीं ना कहीं हमें जो फुल सपोर्ट चाहिए वो पुलिस प्रशासन का चाहिए। एट द एंड गाड़ी वहीं आके अटकती है कि हमें जो एंड सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से चाहिए। कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, सारे एक साथ जुट होंगे, और हमारा कॉपरेशन भी उनको मिलेगा, उनका कॉपरेशन भी हमें मिले, देन द पीपल विल बी सिक्योर्ड। एंड सर, जो पैलेस के अंदर हुआ, जिसे गैंग वॉर कहा जा रहा है, गोली कांड कहा जा रहा है, लेकिन हमारे जो रिस्पेक्टेड सीपी उनकी तरफ से कहा जा रहा है नॉर्मल से बदमाश थे, तो आपको क्या लगता है कि इट्स नॉट अ कॉमन थिंग? आप एक रिवॉल्वर में 6 गोलियां होती है, इजीली आप अंदर कैरी करके ले जाते हैं, लाइसेंस कैसे मिल रहे हैं लोगों को? सबसे बड़ा एक ये सवाल आज यहाँ खड़ा होता है, लाइसेंस इतनी इजीली कैसे मिल रहा है और उसके बाद फायर होना, इट्स नॉट अ कॉमन थिंग? मैडम, इस बारे में देखिए, ये तो मतलब मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो घटना कहीं भी घट सकती। मैं इसको प्री प्लान्ड या, देखिए, कहीं भी एक छोटी सी कहासुनी होती है, वो
इमीडिएट खत्म भी हो जाती है अगर वहां पे समझदार लोग हैं, समझाने वाले लोग। वो छूट अगर वहां पे कोई समझदार व्यक्ति नहीं है, उसे एक एग्जांपल देर बता रहा हूँ, और अगर वहां पे कोई समझाने वाला, या अब आधे से ज्यादा जगहों पे क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि आग में तेल डालने वाला काम, वो लोग ज्यादा मिलेंगे आपको। तो इस पे मतलब ये जो गोलीकांड हुआ और गैंग वॉर, आप जब भी एक्सपेक्ट से देख रहे हैं इसको, मैडम अब इसके पीछे कैसे वो बड़ी है, कैसे क्या हुआ है, आई वॉज नॉट ऑन द स्पॉट। और कुछ अगर समझदार लोग होते, कोई बीच में पड़ता, तो मेरे हिसाब से ये सॉर्ट आउट कर लिया जाता। बट अब अपना मेन फोकस मैम यही रहेगा कि एक एग्जाम्पल सेट हो गया है, उस एग्जाम्पल को जो अपन ने देखा है अपने सामने, अब उसको और प्रॉपर, ताकि आने वाले जो हमारे प्रेमाइसेस में या हमारे वेन्यूज पे जो आने वाले गेस्ट हैं, उस पे ज्यादा अपन फोकस करें, उनकी सिक्योरिटीज पे, ताकि उनमें किसी पार्टी को अटेंड करने के लिए भय और खौफ ना रहे। तो उस पे अपन ज्यादा फोकस करें। तो बस मेरा कहना यही है कि मैम हम सब एक हों और हायर अथॉरिटीज से एक मीटिंग करें, एक नॉर्म्स वगैरह रूल्स कैसे उसको और बेटर करना है, ताकि आने वाला गेस्ट हमारे प्रीमाइसेस में सेफ रहे, बिल्कुल, और ऐसी वारदातें ना हो। बिल्कुल। तो उसका एक एग्जांपल। सर जाते जाते लास्ट में हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि अब आपके बुकिंग स्टार्ट हो गई है आपके मेंशन में भी, बाय द फर्स्ट मेंशन में, तो क्या पूरे तरीके से सिक्योरिटी को लेकर आप इस टाइम टाइट हो चुके हैं, स्ट्रिक्ट हो चुके हैं? यस मैम, इस जहाँ जहाँ हम लोगों को, अब पहले हम लोगों ने जहाँ जहाँ वर्किंग किया था जी, अब ये जो केस हुआ है, इसके बाद हम लोग और ज्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं, और जो कॉर्नर्स रह गए थे उनको और टाइट कर रहे हैं जी, और 100% जो आने वाला गेस्ट है वो हमारे प्रीमाइसेस में सेफ रहे। और जितना जल्दी होगा हम लोग एक प्लान आउट करते हैं, सारे एक होके, जितने भी पैलेसेस वाले हैं, बैंक्वेट हॉल्स वाले, और एक हायर अथॉरिटीज से, क्योंकि अभी सीजन चालू हुआ है, तो सीजन अभी बाकी है, तो और सीजन प्रॉपर निकले, हमारे गेस्ट सिक्योर्ड हो, फुल एंजॉय करके जाएं हमारी प्लेसेस पे। तो ऐसा कुछ करके। बिल्कुल, थैंक यू सर अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। लगातार हर एक सच्ची खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, हर एक सच्ची खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कुछ हॉटलियर से हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं। आज सवाल खड़ा हो रहा है सिक्योरिटी के ऊपर, मैरिज पैलेसेस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि मैरिज पैलेस में इस तरीके की जो गैंगवार हुआ, गोलीकांड हुआ, लेकिन अब जितने भी होटलियर्स हैं वो यही चाहते हैं कि एक मेजॉरिटी, एक यूनिटी बनाकर गवर्नमेंट के साथ वो सपोर्ट चाहते हैं, पुलिस प्रशासन के साथ वो सपोर्ट चाहते हैं कि हाथ से हाथ मिलाकर इस तरीके की सिक्योरिटी वेडिंग इवेंट्स में दी जाए, ताकि जो आम पब्लिक है वो वेडिंग फंक्शंस को बिल्कुल दिल से एंजॉय कर सके, जहां उनकी आंखों में कोई डर ना हो। उम्मीद करेंगे कि ऐसी हर एक सच्ची खबर आप तक पहुंचे, और पहुंच भी रही है हमारे चैनल के माध्यम से। तो आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। और जो दो गैंगस्टर्स हैं, अंकुर और शुभम, उनके खिलाफ भी इस टाइम पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा सख्त होती हुई नजर आ रही है। तो उम्मीद करेंगे ये जो केस है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा।